یہ یہود و نصارہ مجھ کو مٹانے پہ تولے، اور ایک ہم ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اسلامی قانون کو ضائع کرنے میں لگے، ہم دوسروں کی پیروی کرنے میں۔ شادی بیاہ میں 70 سال کی بڑھیاں میری ناچتی ہیں، کس کی پیروی ہے؟ کیا ہمارے بزرگوں نے کہا ہے؟ کیا مولانا صاحب نے تقریب میں سے کبھی کہا ہے کہ جب آپ کے گھر میں شادی ہو تو ماں بھی ناچے، دادی بھی ناچے، چچی بھی ناچے، پھوپھی بھی ناچے، خالہ بھی ناچے، سب ناچے؟ کیا تقریب میں کسی مولانا نے کہا ہے؟ کیا پیر صاحب نے کہا ہے؟ یا کتاب میں موجود ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر یہ کلچر کہاں سے آیا؟ یہ کلچر فلم سے آیا، یہ کلچر یہود و نصرانی کے یہاں سے آیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا جب فلم میں ناچنے والے لوگ حجاب کے خلاف بولتے ہیں، فلم میں ناچنے والے جب ٹوپی کے خلاف بولتے ہیں، فلم میں گانے والے جب ہماری اذان کے خلاف بولتے ہیں، تو ہمارے نوجوانوں کے بدن میں آگ لگنی چاہیے کہ حجاب اور نقاب کے خلاف تم بولتا ہے، ٹوپی کے خلاف تم بولتا ہے، ہماری اذان کے خلاف تو بولتا ہے۔ اب میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ تیری فلمیں دیکھوں گا، نہ تیرے گانے سنوں گا، نہ تیرا ڈائیلاگ بولوں گا۔ میری اذان کے خلاف بولتا ہے، اب میں تیرا گانا نہیں گاؤں گا، تیری فلمیں نہیں دیکھوں گا، تیرے ڈرامے نہیں دیکھوں گا۔ تو نے اسلام مٹانے کے پیچھے لگا ہے تو اب ہم بھی اسلام بچانے کے پیچھے لگے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک قوم مسلم، مگر ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے قانون پردہ کو اجاڑنے میں لگے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی مسجدوں کو ویران کرنے میں لگے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی اسلامی تہذیب کو اجاڑنے میں لگے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، رسول پاک کہاں؟ اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کبھی بھی اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو۔ اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرنا چاہتے ہیں۔ ایک قدم تم بڑھو، اللہ کی رحمتیں 10 قدم تیری طرف بڑھ جائیں گی۔ تم چلنا شروع کرو اسلام پر، اللہ کی رحمتیں دوڑ کی طرح استقبال کریں گی۔ وہ دوسرا مذہب ہے جس مذہب میں بندہ گناہ کرے تو تباہ ہو جاتا ہے، یہاں ہے کہ گناہ کرنا انسانی نیچر ہے، گناہ پہ آڑا رہنا یہ شیطانی نیچر ہے۔ گناہ کے بعد جہاں سچی توبہ کرے، اللہ کی نوازشات اس کو گھیر لیتی ہیں، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہیں۔ اس لیے گناہ کرنا اور گناہ پہ اکڑے رہنا یہ کافروں کی صفت ہے، اور گناہ کر کے نرم ہو جانا، سچی توبہ کرنا، آنسو بہانا، اپنے آپ پہ نادم اور شرمندہ ہونا، توبہ کر کے نیک بننا، اللہ رب العزت سے رحم و کرم کی بھیک مانگنا، یہ مومنانہ خصلت ہے۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے اسلام، اپنے اسلامی کلچر کے بارے میں سوچتا رہے، غور و فکر کرتا رہے۔ یہ نہ بولے کہ مصطفیٰ کہاں ہے، مصطفیٰ آج بھی ہماری مدد کو تیار ہے، شرط ہے کہ آپ محمدی رنگ میں رنگ جائیں، آپ مصطفی رنگ میں رنگ جائیں۔ ذرا غور سے سنیے، اتنا بڑا ثواب اسی لیے ہے تاکہ ہمارا غرور ٹوٹے، ہمیں صحت کی قدر معلوم ہو۔ ہم جب کسی طاقتور کو وینٹیلیشن پہ دیکھیں، آکسیجن لگی ہوئی ہے، وہ بندہ سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے، تاکہ آپ کو لگے اے اللہ تیرا کروڑوں احسان ہے کہ میری سانس چل رہی ہے، میں آسانی سے سانس لے رہا ہوں۔ اس کو سانس لینے کے لیے محنت کرنی پڑ رہی ہے، الگ سے آکسیجن لگا دیا گیا ہے۔ الہی تیرا کروڑوں احسان کہ تو نے مجھ کو صحت دی، تو اب اس صحت کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کا استعمال یہ سجدے میں لگائے، عبادت میں لگا دے۔ یہ ہونا چاہیے تاکہ صحت کی قدر معلوم ہو۔ آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیز سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لے، چونکہ یہ چیزیں ہمیشہ تیرے پاس نہیں رہنے والی، اور دنیا نام ہی اس کا ہے جو ایک حالت پہ نہ رہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آندھی ہمیشہ نہیں رہتی ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے، رات ہمیشہ نہیں رہتی ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے، دن ہمیشہ نہیں رہتا، دن آتا ہے چلا جاتا ہے، سورج اگتا ہے ڈوب جاتا ہے، چاند نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے، مہینہ، دن، رات، ہفتہ، سال، یہ سب چینج ہوتے رہتے ہیں۔ رمضان آیا، بڑی تیزی کے ساتھ 30 دن گزر گئے، پتہ تک نہیں چلا۔ جب رمضان آیا تھا لگتا تھا 30 دن روزہ رکھنا ہوگا، لیکن کس طرح 30 دن گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آخر زمانے میں سال ایک مہینے کے برابر گزر جائے گا، ایک مہینہ لگے گا جیسے ایک ہفتہ کے برابر، ایک ہفتہ لگے گا جیسے ایک دن کے برابر، اور دن ایسا لگے گا جیسے ایک چنگاری بھڑکی
और बुझ गई। ये क़यामत की निशानी है कि दिन बड़ी तेजी से गुजरेगा, वक्त बड़ी तेजी से गुजरेगा। रमजान अभी आया और चला गया, ईद आ गई, ईद के तीसरे दिन हम प्रवेश कर गए। दुनिया नाम है उसका, दुनिया की हर चीज चेंज होती रहती है। जवानी हमेशा नहीं रहेगी, दौलत हमेशा नहीं रहेगी, बुढ़ापा हमेशा नहीं रहेगा, जिंदगी हमेशा नहीं रहेगी, और जुल्म भी हमेशा नहीं रहेगा। जो बंदा इस पॉइंट पे गौर कर लेगा वह जान जाएगा कि सैलाब आया चला गया, आंधी आई चली गई, फिर मौसम नॉर्मल हो जाता है, फिर मौसम नॉर्मल हो जाता है। आंधी आई चली गई, तूफान आया चला गया, मौसम नॉर्मल हो जाता है। जाड़े का मौसम आया चला गया, फिर बंदा सीधा खड़ा हो गया। उसी तरह कभी कभी बदकार मुसलमानों को सजा देने के लिए कुफ्फारो मुशरिकीन को सर पे मुसल्लत किया जाता है। उनके जुल्म की आंधी चलती है, और वह आंधी चलती है उस वक्त में बंदा खड़ा ना रहे। आंधी जब चलती है जो सीना तान के रहेगा, आंधी उसके जोर को तोड़ डालेगी, आंधी उसको गिरा देगी। लेकिन हिकमत क्या है कि आंधी जब चले तो बंदा झुक जाए, बंदा सब्र कर ले, बंदा लेट जाए, आंधी के खत्म होने का इंतजार करे, फिर मौसम नॉर्मल होगा, फिर यह बंदा खड़ा हो जाएगा। जैसे जो दरख्त आंधी में झुक जाता है, आंधी खत्म हुई फिर वह दरख्त पे खड़ा हो जाता है। लेकिन जो दरख्त अकड़ा रहता है, आंधी उसके जोर को तोड़ डालती है। कभी कभी कुफ्फारो मुशरिकीन के जुल्म की आंधी चलती है, बम गिरता है, बारूद गिरते हैं। ऐसे में लगता है कि मस्जिदें नहीं बचेंगी, मदरसा नहीं बचेगा, खानका नहीं बचेगी, हमारी आबरू नहीं बचेगी, हमारा दीन नहीं बचेगा। मगर ऐसा नहीं होता है, बल्कि मुसलमानों को समझना चाहिए कि 1500 साल हो गए, इस दौरान कभी यजीदी आंधी आई, कभी चंगेजी आंधी आई, आंधी आई चली गई, तूफान आया चला गया, मगर इस्राइल मुस्कुराता रहा। आज अमेरिका के जुल्म की आंधी चली है, आज इस्राइल के यहूदियों की जुल्म की आंधी चली है। तो जैसे यजीदी आंधी चली गई, चंगेजी आंधी चली गई, बेशुमार आंधी आई चली गई, मगर मस्जिदें न मिट सकी, खानका न मिट सकी, आजान न मिट सकी। आज की आंधी भी छटेगी, फिर इस्लाम मुस्कुराएगा, इस्लाम तरोताजा हो जाएगा। दुनिया कहते ही है उसको है कि एक हालत पे जो चीज कायम ना रहे उसे दुनिया कहते हैं। दुनिया की कोई चीज न गरीबी हमेशा रहने वाली है और न मालदारी हमेशा रहने वाली। आप देखे होंगे इलाके में जो जमींदार कहलाते थे, 1,000 एकड़ जमीन जोतने वाले थे, आज उसका बेटा आजमगढ़ में ठेला पे साहब सब्जी बेच रहा है। जो लोग 1,000 बीघा जमीन जोतने वाले थे, उसका बेटा दिल्ली में जाके साहब नोएडा के सेक्टर 19 में ठेला चला रहा है। मेरे गांव का 500 बीघा जमीन जोतने वाला उसका बेटा आज साहब दिल्ली और पंजाब में नौकरी कर रहा है। और जो उनके घर में गाय चराता था वो शानदार आलीशान बिल्डिंग बना रहा है। जो उनके घर में गाय चराता था वो साहब 5 लाख की बुलेट पे चल रहा है, वो साहब 25 लाख की इनोवा पे चल रहा है। उनके घर में मजदूरी करने वाला दुनिया है। दुनिया में कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती। जो मालदारी में मगरूर हो जाए वो साहब गाफिल और लापरवाह है। जो गरीबी में मायूस हो जाए वो भी हिकमतों से खाली है। तो अक्लमंदी का तकाजा है कि दौलत आए जाए, गरीबी आए जाए, मगर ईमान की दौलत हाथ से न जाए। अक्लमंद वही है जिसपे ईमान की दौलत बची रहे, तकवा की दौलत बची रहे, नमाज रोजे हज और ज़कात की दौलत बची रहे। मकान बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा, और ईमान की दौलत आपके पास मौजूद है तो आपसे बड़ा धनवान दुनिया में कोई नहीं है, आपसे बड़ा मालदार कोई नहीं। इसकी अहमियत इस तरह से समझे आप। अजमतगढ़ में जो बंदा ठेला चलाता है, सब्जियां गली गली में बेचता है, मुसलमान है, अगर उसके पास मुकेश अंबानी बंबई का जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार है, सबसे बड़ा मालदार है, जिनकी बेटी और दामाद का घर इतना बड़ा है। अभी मैं कुछ दिन पहले बंबई समंदर के किनारे से गुजर रहा था तो किसी ने कहा कि ये मकान उसके अंबानी जी के दामाद और उसकी बेटी का है, इन्होंने उसको गिफ्ट दिया। ये 4,000 करोड़ रुपए का, 4 करोड़ नहीं, 40 लाख नहीं, 4,000 करोड़ रुपए का घर एक बाप अपनी बेटी को गिफ्ट दिया। कैसा हो? उसका अपना घर 36 मंजिला, वो भी हाजी अली जाएंगे उसी के सामने उसका पीडर रोड पे उसका घर है। 36 मंजिला मकान, कई हजार करोड़ रुपए का मकान बना हुआ है। इतना बड़ा मालदार है वो। अगर आ जाए अजमतगढ़
यहाँ ठेला पे बंदा प्याज बेच रहा है, कांदा बेच रहा है, सेब बेच रहा है, जिसको दिन भर की कमाई 1000 रुपए है। अगर उनके पास आके बोले कि वो जो 36,000 करोड़ का मेरा घर है वो घर मैं तुझको दे दूंगा और तुमको सिर्फ इतना काम करना है कि मेरे घर में एक चांदी का बुत है, उस बुत को सजदा कर देना है, तुम चलो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर वो बंदा मोमिन है, वो ठेला पे सब्जी बेचता है, 1000 रुपए डेली कमा के अपने बाल बच्चों को पालता है, ये कहेगा अंबानी जी तेरे 36,000 करोड़ के घर पे थूक दूंगा मगर ईमान का सौदा नहीं वाह 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 वाह। ईमान का सौदा नहीं करूंगा। तो जो दौलत ईमान की अल्लाह ने आपको दी है, ये वो दौलत है जो टाटा की दौलत से बेहतर है, बेशक। जो बिरला की दौलत से बेहतर है, जो अंबानी की दौलत से बेहतर है। ये बात अगर आप समझ गए कायदे से, कभी गरीबी कोरोना नहीं रोएंगे आप, कभी आंख से गरीबी पे आंसू नहीं बहाएंगे आप, और कभी ये नहीं बोलेंगे कि हमको कुछ नहीं दिया। हदीस में मैंने पढ़ा है कि जिसको अल्लाह ने कुरान की दौलत दी, जो हाफिज कुरान बन गया, अगर वो ये समझा कि मुझसे ज्यादा दौलत दूसरे को मिली, उस बंदे ने कुरान पाक की तौहीन कर दी, उसने कुरान पाक का अपमान कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपको गोल्ड का घर मिल जाए, चांदी का घर मिल जाए, हीरे जवाहिरात का घर मिल जाए, और अल्लाह ताला आपको यहूदी बना दे, अल्लाह आपको काफिर बना दे, अल्लाह आपको अल्लाह आपको मुशरिक बना दे, अल्लाह आपको सूअर का गोश्त खाने वाला बना दे, आप कभी नहीं चाहेंगे। जब नहीं चाहेंगे तो जो दौलत अमेरिका के उद्योगपति को नहीं है, ईमान की दौलत, वो दौलत अल्लाह ने आपको दिया है। तो आप समझ लें कि सबसे बड़ा धनवान आप है, सबसे बड़ा मालदार आप है। जो अल्लाह अमेरिका के अरबपति को जो दौलत नहीं दिया है ईमान की, वो दौलत अल्लाह ने आपको दिया है। इसका मतलब निकला कि इस दौलत का शुक्राना यही है कि एक नमाज ना छूटे, एक सजदा ना छूटे, बल्कि अलग से 2 रकात डेली नमाज पढ़े। इलाही तूने मुझको अमेरिका का ट्रंप नहीं बनाया, तूने मुझको गुलाम मुस्तफा बनाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर चूंकि कभी इस पॉइंट पे नजर आपकी नहीं रहती है, इसलिए आप अपनी गरीबी का रोना रोते। मुसलमान गरीब है, मुसलमान ठेला चलाता है, मुसलमान रिक्शा चलाता है, मुसलमान सऊदी अरब में जाके ऊंट चराता है, मुसलमान गल्फ कंट्रीज में जाके मजदूरी करता है, वहां 10-20 साल मजदूरी करके आके छोटा सा घर बनाता है, फिर जब पैसा खत्म हो गया फिर दौड़ के वो चला जाता है। मुसलमानों के पास अपना कोई बहुत बड़ा कारोबार नहीं है। आप ये मुसलमान 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 करते रहते हैं, आप हमारे पास दौलत नहीं है। चूंकि आपकी नजर इस दुनिया की सच्चाई पे नहीं है, इसीलिए आप इन काफिरों के मुकाबले में दौलत समझते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों को उससे ज्यादा धनवान बना दे, उससे ज्यादा बड़ी बिल्डिंग इसको दे दे, उससे बड़ा कारोबार मुसलमान को दे दे, और यहां कारोबार दे दे, दौलत दे दे, और मरे तो जन्नत दे दे। चाहे मुसलमान शराब पीता रहे, ज़िना करता रहे, साहब रात भर जाग करके रील देखता रहे, सिनेमा देखता रहे, दूसरों की भाई बेटी की आबरू लूटता रहे, जुल्म करता रहे, झूठ बोलता रहे, समाज में सारे लोगों से दुश्मनी मोल लेता रहे, अपने पड़ोसी की पीठ में खंजर भोगता रहे, वो साहब जानवरों की तरह दूसरों से सलूक करे, सब करे, मगर यहां दौलत मिल जाए, मरने के बाद जन्नत मिल जाए। ऐसा नहीं होता है, बल्कि होता वही है कि दुनिया अगर जन्नत चाहिए तो यहां सब्र करना होगा, यहां सब्र से रहना पड़ेगा, और दोनों जहान की दौलतें नहीं मिलेंगी। मिलेंगे अगर जन्नत, या ईमान बचाना होगा, तकवा बचाना होगा, किरदार बचाना होगा, काफिरों को नहीं देखना होगा। अगर यहां सब्र करके रहे तो मरे तो अल्लाह जन्नत की दौलतें आप पर लुटा देगा। वाह 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 वाह। ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अल्लाह ने क्या कहा सूरह बकरा में, द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड हैज बीन डेकोरेटेड फॉर डिसबिलीवर एंड दे लाफ एट बिलीवर। अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दी है और वो साहिब ईमान को देखकर हंसते हैं। अल्लाह कहता है वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। ए मुसलमान, अगर तुमने तक़वा के साथ दुनिया में जिंदगी गुजारी, कल क़यामत के दिन तुम इन काफिरों की हालत पे हंसोगे और अल्लाह तुम्हें इज्जतों का ताज पहनाएगा। तुम्हारी निगाहों के सामने मुंह के बल घसीट कर ये मुशरिकीन और कुफार आग के कोड़े, आग की जंजीर में इसको बांध कर जब जहन्नम की आग में डाला जाएगा और
तुमको सोने चांदी के तख्त पे बैठा के सोने का कंगन हाथ में डालकर रेशमी लिबास पहनकर, दुनिया में रेशम का कपड़ा मर्द के लिए हराम इसीलिए है, ये कपड़ा जन्नत में खास है। सोना पहनना मर्द के लिए हराम इसलिए है, इसको सोने का कंगन जन्नत में पहनाया जाएगा। रेशम का कपड़ा पहनना हराम इसलिए है कि रेशमी लिबास जन्नत में पहनाया जाएगा। तो रेशमी लिबास पहनाकर, सोने के तख्त पे बैठाकर, सोने का कंगन हाथ में डालकर, इज्जतों के साथ बिठाकर, उनकी निगाहों के सामने ट्रंप हो, नेतन्याहू हो, पूरी दुनिया का बड़ा से बड़ा साथ कुफार मुशरिकीन हो, सब निगाहों के सामने मुंह के बल घसीट कर आग में जब डाला जाएगा, तब ये ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, गली कूचे में रहने वाला, मजदूरी करने वाला, खेत में हल चलाने वाला, पर ईमान बचाने वाला, नमाज बचाने वाला, रोजा बचाने वाला, तकवा बचाने वाला, सब्र करने वाला, गरीबी पे नहीं रोने वाला, ईमान बचाने वाला, जब इनको इज्जत का ताज पहनाया जाएगा, यह कहेगा मालिक तेरा करोड़ों एहसान, अगर दुनिया में मेरे बदन को तू कैंचियों से काट दिया होता तो आज मुझको ज्यादा बड़ा मर्तबा उससे मिल गया होता। क्या मतलब, तूने दुनिया नहीं दी, तूने आखिरत की रुसवाई से मुझे तूने बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुसलमान हमेशा दुनियावी नुक्ते नजर से सबको ना समझे कि साहब उसको दौलत मिली, हमको दौलत नहीं मिली, बस इसको समझाने के लिए मैं पुराने पाक की एक आयत पढ़ता हूं, उसको गौर से सुनिएगा। और पूरा कुरान जो आप पूरे कुरान में जो आखिरत और दुनिया का मफहूम बताया गया है, वो सारा मफहूम इस आयत करीमा में जमा है। इसको गौर से सुनिएगा कि अल्लाह ने क्या कहा, मुसलमानों को इस दुनिया की सच्चाई समझाने के लिए क्या जबरदस्त आयत करीमा नाजिल किया है कुरान में।